आप सभी के साथ एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मोटिवेटिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। अगर आपकी भी कोई चीज़ खो गई है तो आई थिंक आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी बिल्कुल एंड ज़रूर देखनी चाहिए। प्लस मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं एंड आपको समझ नहीं आ रहा है, आपके बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि दो से तीन लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी ज़रूर देखिए, जिससे कि आपका जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप हो। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, डाउट करेंगे, तो आप वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। डाउट के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी लगाया नहीं जाता है। तो वो ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए, वो मोटिवेशन लाने के लिए आपको डेली दो से तीन लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरीज देखनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। ये जो स्टोरी है ये मुझे मेल के थ्रू शेयर की गई है एंड ये आशुतोष जी ने इस स्टोरी को मुझे शेयर किया है। ठीक है, ये जो स्टोरी है मुझे इंग्लिश में भेजी गई है, तो पहले मैं इसे इंग्लिश में पढ़ूंगी एंड अगर आप हिंदी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं तो आप वीडियो को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इस टाइम से यहाँ से हिंदी वर्जन इस स्टोरी का स्टार्ट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। हेलो मैम, myself Ashutosh. I am a regular watcher of your success story videos. I want to share my success story with you. It may look small to you, but it is a very big to me. Here we start. Yesterday, near about 4 o'clock in our office premises, my father gave me a self-check to withdraw the cash from the bank. But then we realized that cash counter is closed. So my father asked me to keep the check with me and withdraw the cash the day after. That time I was occupied with few more works, and in hurry I kept the check in my pocket instead of wallet. And my pocket usually contains many more stuff like my cell phone, mask, charger, earphone, etc. And I was so busy with my work that I almost forgotten about the check. At night near 8 o'clock, my father reminded me about that cash withdrawal. I got completely shocked that yes, my father has given me that check and I didn't remember where I have kept. Then I got clicked in my brain that I have kept that check in my pocket. And it was not there. Maybe while taking the phone or something out of my pocket, the check must have fallen somewhere. It was a self-check. It means it should be kept safely until the cash is withdrawn. If it is misplaced and got handed with someone else and of that person is dishonest, he may withdraw the cash and keep it with himself. So it was a very dangerous situation for him. I didn't inform my father as I was too scared. At first, I was really very worried that if it is withdrawn by someone else, what would my father say? Then I took few deep breaths and thought to apply law of attraction. I was just imagining that check is with me now and I'm holding that in my hand and getting encashed from bank. Then I thought that only just imagining the things won't work. I have to take some actions too. Then I decided to go to the places I visited while returning from the home, including the outside area of my office, and searched for the check if it has fallen somewhere. And on my way, I just felt good and thanked God that I have received the check. But unfortunately, I didn't found. And last hope was the office which would be opening the morning day after. I came back home with a good mood and let all the thought go from my mind and felt good that check is with me and thanked God and continued with my routine. It means let it go. He did that actually in a really good way. So next day, that is today, on my way to office, I decided to search for the check in the whole office, and if in case I didn't found, I would confess my mistake to my father. Then with the grace of God, I didn't have to do that. When I reached to the office, I first gone to my place where I sit to keep my tiffin. What I saw there, the check was there itself on the floor. I didn't expect at all that it would be there at that place. I was incredibly happy. I thanked God, instantly gone to bank and encashed it. What I learned from this incident: have faith, believe, act with a positive attitude with your belief strong, be grateful and let it go, and think positive.
This was an amazing law of attraction success story, and thank you so much for sharing this story with us. So now I'm going to read the Hindi version of this story. अब मैं इसका हिंदी वर्जन स्टोरी का पढ़ने वाली हूँ. हेलो मैम, मेरा नाम आशुतोष है. मैं आपके वीडियोस डेली देखता हूँ एंड मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. मे बी ये आपको छोटी मैनिफेस्टेशन लगे, बट ये मेरे लिए बहुत बड़ी है. तो यहाँ से शुरू करते हैं. कल अराउंड 4 o'clock ऑफिस में मेरे फादर ने मुझे एक सेल्फ चेक दिया था बैंक से कैश विड्रॉ करने के लिए. तो मेरे फादर ने मुझे ये चेक मेरे पास रखने के लिए बोला एंड कहा कि मैं नेक्स्ट डे कैश विड्रॉ कर लूँ, क्योंकि उस टाइम तक बैंक बंद हो चुके थे, काउंटर बंद हो चुका था. उस समय मैं जल्दी में था एंड कुछ और कामों में बिजी था. मैंने जल्दी में उस चेक को अपने वॉलेट की बजाय अपने पॉकेट में रख दिया एंड मेरी पॉकेट में यूजुअली काफ़ी सामान रहता है, जैसे कि मेरा सेल फोन, मास्क, चार्जर, ईयरफोन एट्सेट्रा. मैं अपने काम में बहुत बिजी था एंड ऑलमोस्ट चेक के बारे में भूल चुका था. रात के टाइम अराउंड 8 PM मेरे फादर ने मुझे नेक्स्ट डे कैश विड्रॉ करने का रिमाइंड करवाया एंड मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया, क्योंकि यस, मेरे फादर ने मुझे चेक तो दिया था, बट अब मुझे ये याद नहीं था कि मैंने उसे कहाँ रखा है. तब मुझे अचानक से याद आया कि वो चेक मैंने अपनी पॉकेट में रखा था, बट अब वो चेक मेरी पॉकेट में नहीं था. हो सकता है कि फ़ोन या कुछ निकालते समय, कुछ सामान निकालते समय मेरे से वो चेक कहीं गिर गया हो. सो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की सिचुएशन है. वो एक सेल्फ चेक था जो कि बहुत सेफली रखा होना चाहिए. अगर वो खोता है एंड अगर किसी डिसऑनेस्ट पर्सन के हाथ लगता है, गलत पर्सन के हाथ लगता है, तो वो पर्सन कैश विड्रॉ इजीली कर सकता है एंड कैश अपने पास रख सकता है. मैं बहुत डरा हुआ था एंड मैंने अपने फादर को इसके बारे में नहीं बताया. शुरुआत में मैं बहुत डरा हुआ था कि अगर किसी गलत पर्सन ने वो चेक से कैश विड्रॉ कर लिया तो क्या होगा, मेरे फादर कैसे रिएक्ट करेंगे. तब मैंने कुछ लंबी सांसें ली एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने के बारे में सोचा. मैंने इमेजिन किया कि चेक मेरे पास है एंड मैंने उस चेक को पकड़ा हुआ है एंड मैं अब उसे एनकैश्ड करवा रहा हूँ. फिर मैंने सोचा कि इमेजिन करना काफ़ी नहीं होगा, मुझे एक्शन भी लेने होंगे. फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं उन जगहों पे जाऊंगा जहाँ जहाँ मैं ऑफिस से लौटते हुए गया था, जैसे कि ऑफिस के बाहर का एरिया, एंड चेक को हर जगह ढूंढूंगा कि वो कहीं गिरा हुआ तो नहीं है. जब मैं जा रहा था मुझे अच्छा फील हो रहा था एंड आई थैंक गॉड दैट आई हैव रिसीव्ड द चेक. इन्होंने यहाँ पे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी थी इन एडवांस, प्रेजेंट टेंस में, कि थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दिया यूनिवर्स को कि थैंक यू, मुझे वो चेक मिल गया है. उन्होंने ऐसी पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी. बट अनफॉर्चुनेटली मुझे वो चेक वहाँ नहीं मिला. अब मेरा लास्ट होप मेरा ऑफिस था जो नेक्स्ट मॉर्निंग ओपन होने वाला था. अब मैं अच्छे मूड के साथ घर वापस आया एंड मैंने उस थॉट को जाने दिया एंड ऐसे फील किया कि जैसे वो चेक ऑलरेडी मेरे पास है. अच्छा फील किया, गॉड को थैंक यू बोला एंड अपने रूटीन के साथ कंटिन्यू किया. यानी कि यहाँ पे उन्होंने लेट गो किया, उस थॉट को जाने दिया. नेक्स्ट डे यानी कि आज जब मैं ऑफिस जा रहा था तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे ऑफिस में हर जगह ढूंढूंगा एंड अगर चेक नहीं मिलता है तो मैं अपने फादर को बता दूंगा एंड अपनी मिस्टेक को कन्फेस कर लूंगा. बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे अब ऐसा नहीं करना पड़ा. जब मैं ऑफिस पहुंचा मैं पहले अपनी जगह पे गया अपना टिफिन रखने के लिए एंड मैंने क्या देखा, वो चेक वही था, जमीन पे था. मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो चेक उस जगह होगा, बट मैं बहुत ज़्यादा खुश था. मैं तुरंत बैंक गया उस चेक को इनकैश करवाने के लिए. जो मैंने इस इंसिडेंट से सीखा कि हैव फेथ, भरोसा रखिए, ट्रस्ट कीजिए, एक्ट विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड विद योर स्ट्रॉन्ग बिलीफ, बी ग्रेटफुल एंड लेट इट गो एंड थिंक पॉजिटिव. वाओ, ये स्टोरी बहुत अमेजिंग है, स्पेशली अगर आपकी कोई चीज़ खो गई है एंड आप उस पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ भी चीज़ पॉसिबल है. आप अपने आप को बस पॉजिटिव रखिए, चीज़ें अपने आप अच्छी होंगी. सबसे बेस्ट चीज़ मुझे इस स्टोरी में ये लगी कि वो बहुत पॉजिटिव थे. उन्होंने ग्रैटिट्यूड का साथ नहीं छोड़ा. ग्रैटिट्यूड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है. उन्होंने एडवांस में उसको प्रैक्टिस की, प्लस उनकी एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ थी कि एक्शंस भी ज़रूरी हैं.
एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल करेक्ट। एक्शंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो आपको उस चीज़ के लिए एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा, राइट? एक्शन तो लेना पड़ेगा, तो एक्शन इज़ मस्ट। हमेशा एक्शन लें, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग रखें एंड लेट इट गो। चीज़ से अटैचमेंट रखनी है, उसके आउटकम से अटैचमेंट नहीं रखनी है। दिस इज़ हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। सो आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आशुतोष, आपने ये अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करी है एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे मौका मिला अपने चैनल पे ये शेयर करने का। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। जो मेरा सेकंड चैनल है उस पर मैंने एक वीडियो क्रिएट किया है कि आप कैसे डिजिटल पिंटरेस्ट विजन बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप उसे बना सकते हैं। तो उसका वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं एंड अपना खुद का डिजिटल विजन बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर आपकी कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी है तो आप मुझे यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। मिलते हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव यू गाइस। I love you. Bye.